Now, the next topic is length of tangent, subtangent, normal, and subnormal. Length of tangent, subtangent, normal, and subnormal. Okay. Imagine this is the curve. Okay. This is the curve. This is the tangent, not passing through the origin. No? It's not passing through the origin. Okay. And this is your subnormal, perpendicular to it. No. Okay. Now, I'll take this point as P x comma y. Okay. Now, if I take this point as P x comma y, यहाँ से I'll drop a perpendicular. Okay. Now, this is 90 degree, obviously perpendicular है. ये है मेरा थीटा. इस पॉइंट को हम लोग लेंगे पॉइंट T. Okay. इस पॉइंट को हम लेंगे N और इस पॉइंट को हम लेंगे M. Okay. Now, just zooming in a little bit. I know कि if this is theta, okay, this is 90 degree. Okay, ये 90 डिग्री है, ये बन जाएगा थीटा, और गाइस ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा. ये बन जाएगा थीटा, ये बन जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज ऑब्वियसली द सम ऑफ दिस ट्राइंगल शुड बी 90 डिग्री. sorry 180 degree. I'm sorry, should be 180 degree. Now, what I'm going to do is, देखो, the topic says length of tangent, subtangent, normal, and subnormal. Okay, I know that PT is my tangent. So what I'm going to do is, कि slope of the tangent PT, I'll take this as M, which I will be taking as tan theta, because ये line है, इसका स्लोप हमने m ले लिया, tan theta, because देखो theta है, it is the angle that is made with the positive direction of x-axis. This is the inclination of this theta, so my slope becomes m is equal to tan theta. अब देखो length of tangent क्यों क्या है? Length of tangent, see, we are taking with respect to where it is meeting the x-axis, so length of the tangent is going to be pt. ये जो मेरा length of the tangent है, that is going to be pt. Now look carefully. Okay, pay attention for this. In triangle PTM, where M is the right angle triangle, this is the theta. I will write sin theta is equal to opposite upon hypotenuse. Sin theta is equal to opposite, that is PM, upon the hypotenuse, that is PT. Now PT is the length of the tangent. Therefore, PT is equal to PM sin theta
PM is nothing but your y-axis. So this will become y sine theta. But guys, I don't have the value of sine theta. I don't have the value of PM upon sine theta. Sorry, PM upon sine theta, which will become y upon sine theta. But I don't have the value for sine theta. मुझे सिर्फ tan theta का value वही m है. So I'm going to write it as y cosec theta. Y cosec theta. अब cosec square theta का फॉर्मूला मुझे पता है और sec square theta का फॉर्मूला मुझे पता है. So see what I'm going to write. Y into under root of cosec square theta. Can you tell me what is the formula for cosec square theta? 1 plus cot square theta. And this will become y into under root of 1 plus 1 upon tan square theta. 1 upon 1 plus tan square theta. Therefore, Pt is equal to y into root of 1 plus 1 upon m square is equal to y into under root of m square plus 1 upon m square, which is y upon m root of m square plus 1. This is the length of the tangent. And देखो यार, length है, length cannot be negative. So for your convenience एक काम कर लो, इसको ना mod में डालो. That's it. Obviously length negative नहीं रहेगा. So this is the length of the tangent. This is the length of the tangent. अब subtangent क्या होता है? Subtangent is the projection on the x-axis. Easy way to remember. अगर मैंने ये tangent के ऊपर से ये जो उसको सपोर्ट कर रहा है PM को निकाल दिया तो वो इसके ऊपर गिर जाएगा. That is the projection. Projection is the क्या बोलते हैं? The projection is always with respect to the x-axis और y-axis depending on वो कहाँ पे गिर रहा है. तो remember कैसा करने का है? ये देखो, अगर ऐसा बिल्डिंग है ऐसा और अगर मैंने ये पार्ट को निकाल दिया तो ये डायरेक्टली इस पे गिर जाएगा. दिस इज द प्रोजेक्शन. देखो ऐसे गिर जाएगा डायरेक्ट. सिंस वो ऐसे डायरेक्ट गिर जाएगा, इट इज कॉल्ड एज द प्रोजेक्शन. ये प्रोजेक्ट कर रहा है ऑन द एक्स एक्सिस. अब यहाँ पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का हम लोग डेफिनेशन लेंगे कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ द टेंजेंट ऑन द एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे हम लोग नोट लिखेंगे कि दिस इज नथिंग बट projection of tangent on x-axis. Projection of the tangent on the x-axis. Projection of PT on the x-axis. So देखो ध्यान से. Again, I'll take in triangle PTM. In triangle PTM. अब मुझे ना x-axis पे इसका projection चाहिए. x-axis से projection तभी आएगा when I have cos theta. एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन तभी रहेगा व्हेन आई हैव cos थीटा. तो सबसे पहले अगर मुझे आई नीड दिस एंड आई नीड द ऑपोजिट साइड. पीएम तो चाहिए मुझे, पीटी भी चाहिए बिकॉज पीएम का वैल्यू मेरे पास मिल गया है. आई हैव गॉट समथिंग कॉल्ड एज पीएम. सो इन ट्राइंगल पीटीएम इफ आई स्टार्ट विथ से फॉर एग्जांपल tan थीटा. ओके, टीएम मुझे फाइंड आउट करना है. यहाँ पे लिख दो टीएम. आई नीड टीएम का वैल्यू. सो व्हाट आई एम, और मेरे पास ये वैल्यू है. PM is y-axis. So what I'm going to do is tan theta is equal to PM upon TM. PM upon TM. And since I have PM upon TM, this will become tan theta is M is equal to PM is what? Y upon TM. Now, therefore, Tm will become y upon m. And everyone knows कि m का value is nothing but tan theta. So basically y upon m लिख दिया है. And this is your length of subtangent. कुछ नहीं करना है. Tangent, subtangent. Whenever you get something called as tangent, you have to just use the formula for tangent as this is length of tangent. Y upon n under root of m square plus 1. And that is the length of subtangent is equal to y upon m. Tangent, subtangent. This is the length of tangent, this is the length of subtangent. अब आता है normal.
अब अगर लेंथ ऑफ नॉर्मल निकलना है तो नॉर्मल इज दिस, तो ये दूसरा ट्राइंगल यूज होगा. अब थर्ड पार्ट आएगा लेंथ ऑफ नॉर्मल. ऑब्वियसली टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर रहेगा उसको हम हमेशा नॉर्मल बोलते हैं. So for length of normal, what you are going to do is you are going to use in triangle PMN. In triangle PMN. I repeat, length of normal will become in triangle PMN. 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 अब देखो ये थीटा है मेरा. अब मैंने लिख दिया cos थीटा. से फॉर एग्जाम्पल देखो तुम लोग साइन cos tan सब निकाल सकते. cos थीटा is adjacent. Adjacent is what we have to find upon adjacent is PM. Adjacent is PM and hypotenuse is PN. So cos theta will become PM upon PN. I know that PM is nothing but Y. So cos theta is equal to Y upon PN. PN will become y sec theta, which is y under root of sec square theta, which is y under root of 1 plus tan square theta, and my formula is mod of under root of 1 plus m square. This is the length of normal. This is the length of normal. This is the length of normal. और अगर वापस इस ट्राइंगल में अगर मैंने ये सपोर्ट निकाल दिया तो Pn गिरेगा Mn पे. That is the projection and that is the length of subnormal. And the length of subnormal and length of subnormal, देखो length of normal, length of subtangent में जो किया था same length of subtangent में भी हमने tan theta निकाला था. तो again length of subnormal के लिए in triangle PMN tan theta is Mn upon Pn is Mn upon Pn. Mn upon PM. Sorry, PM. Therefore, PM का वैल्यू मुझे पता है. What is PM का वैल्यू? What is PM का वैल्यू? Y axis. ठीक है. So M is equal to Mn upon Y. Therefore, Mn, that is length of subnormal, will become Ym. So my four formulas is, this is length of tangent, this is length of subtangent, this is length of normal, and this is length of subnormal. This is length of subnormal. So length of tangent, length of subtangent, length of normal, and length of subnormal. These are your four formulas. Very, very, very important set of formulas. A lot of questions are based on these things. Okay. Next. If I write a question, prove that से start करते हैं. Prove that subnormal. Prove that subnormal at any point on parabola. Prove that subnormal at any point of parabola y square is equal to 4ax is a constant. अब इसका मतलब क्या होता है हमको वो समझना. They have given the equation y square is equal to 4x. अब मैंने subnormal, let me go back. This is the formula for subnormal. Your y-axis into your slope. I repeat, your y-axis into your slope. तो slope तो निकालना जरूरी है. So what I'm going to do is I'm going to differentiate this. 2y dash is equal to 4a. y dash is equal to 2a. ये देखो, y dash is nothing but your slope. Therefore, this is nothing but my. या तो ऐसे लिख दो. Therefore, ym is equal to 2a. यही तो पूछा है. Is it a constant? Yes, it is a constant. तो बेसिकली हमने ये प्रूव कर दिया दैट ym का आंसर दैट इज लेंथ ऑफ सबनॉर्मल हमने अभी जस्ट प्रूव किया एंड आई हैव गॉट ym का वैल्यू दैट इज 2a. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? नेक्स्ट, अगेन tangent, subtangent, normal, subnormal. The next question tells you, asks you, show that the subnormal
at any point on the curve varies inversely as the cube of abscissa. State that the subnormal at any point on the curve varies inversely at the cube of abscissa. सबसे पहले subnormal, okay, abscissa. और मैं इक्वेशन दे रहा हूँ. The equation is x square y square is equal to a square x square minus a square. State that the subnormal at any point on the curve varies inversely as the cube of abscissa. ये इक्वेशन दिया है. सबसे पहले ना मुझे क्या पूछा है, मुझे एक वर्ड दिख गया सबनॉर्मल. Subnormal is nothing but y into your slope. Y into your slope. So let me arrange this. I can arrange this and become y square is equal to a square minus a raised to 4 upon x square. मैंने क्या किया, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया and I took x square on the right hand side. Now I differentiate this. So this will become 2y dash is equal to 0 minus a square into एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो -2 इंटू एक्स रेज टू -3 हो जाएगा इसका डेरिवेटिव. सो देयरफॉर 2y डैश इज इक्वल टू 2a स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब. ये निकल गया, ये निकल गया, एंड दिस विल बिकम y डैश इज इक्वल टू a रेज टू 4 है, सॉरी a रेज टू 4 है ना, a रेज टू 4, तो a रेज टू 4 अपॉन एक्स क्यूब. And a raised to 4 is a constant. Therefore, we prove that this is, therefore, y dash is proportional to 1 upon x cube. That is your inverse proportion. And this is what was asked. Did you guys understand this? Show that it varies inversely. Because ये मुझे मिल गया, and y dash is nothing but ym. See, this is nothing but ym, which is nothing but, if you see here, this is nothing but length of subnormal. This is your length of subnormal. Did you guys understand this? Any doubts here? Now, एक बहुत important remark है, एक बहुत ज़्यादा important remark है. A very important remark. If a curve passes through origin, then the equation of tangent to the curve, at origin is obtained by equating to 0. A very important concept is equating to 0 the lowest degree terms appearing in the equation. सो इक्वेशन में जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स है ना, उसको इक्वेट टू 0 करो. आई गिव एन एग्जांपल. इसका एग्जांपल लेते हैं. माय एग्जांपल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0. नाउ आई नो दैट द लोएस्ट डिग्री टर्म्स, x का लोएस्ट डिग्री इज 2x, y का लोएस्ट डिग्री इज 3y इज इक्वल टू 0. हो गया. दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. कुछ भी नहीं करने का, डायरेक्ट रिमार्क दिया है. This is the equation given. The 2x plus 3y is equal to 0. That is the equation of tangent. Now, if I write this equation, next equation, x cube plus y cube minus 3xy is equal to 0. अब इसका एक नाम है, इस इक्वेशन का नाम है, and I am going to draw इसका, ये कैसे दिखता है वो भी बनाएगा मैं. Now, this equation is like this.
दिस इक्वेशन इज लाइक दिस. इसका नाम है फॉलियम ऑफ डिस्कार्टिस. दिस इक्वेशन का नाम, एंड इक्वेशन ऐसा दिखता है, एंड ये ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम है फॉलियम ऑफ डिस्कार्टिस. तो रिमेंबर दिस फॉलियम ऑफ डिस्कार्टिस. बट मुझे अगर इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दें तो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज सीधा 3xy इज इक्वल टू 0. दिस मीन्स दैट आइदर x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0. दैट्स इट. एंड दिस इक्वेशन का नाम इज फॉलियम ऑफ डिस्कार्टिस. दिस इज हाउ you just remember इसका इक्वेशन का नाम है फॉलियम ऑफ डिस्कार्टिस. इन द लास्ट लेक्चर वी डिड एस्ट्रॉइड, ठीक है, एंड दिस इज फॉलियम ऑफ डिस्कार्टिस. कैसे पास करें, एक्स को भी कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है टू टच इन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड दिस इज हाउ इट विल लुक, फॉलियम ऑफ डिस्कार्टिस. नाउ अभी देखो ना, अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. समझो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड? देखो, समझो ये इक्वेशन दिया, y इज इक्वल टू 3 raised to x minus 1 ln x. दिस इज y का इक्वेशन, एंड ऑल्सो y का इक्वेशन इज x raised to x minus 1. दिस इज गिवन. वन मेथड इज यू इक्वेट बोथ साइड, दोनों का साइड लेफ्ट हैंड साइड y है तो इक्वेट दी RHS. अब ये है a raised to x, दिस इज x raised to x, डेरिवेट करके भी आंसर आ जाएगा. बट if I have to start with hit and trial method, what I am going to do is, अगर मैंने इसको इक्वेट कर दिया बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो I will go by the safest option. अगर मैंने x का वैल्यू 1 ले लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो y will become 3 raised to 1 minus 1 into ln 1. y will become 3 raised to 0 into 0, so y has become 0. And here if I take x is equal to 1, y will become 1 raised to 1 minus 1. So y is equal to 1 minus 1, y is equal to 0. It means that my point of intersection is 1, 0. Without doing anything, I have got the point of intersection as 1. Did you guys understand this? Point of intersection is 1, 0. मतलब ये दोनों जो कर्व है ये एक दूसरे को टच करेंगे एट 1, 0. बट अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, इफ आई हैव टू सॉल्व बाय द स्लोप, से फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू सॉल्व बाय द स्लोप, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इफ आई हैव टू सॉल्व बाय स्लोप. देखो ध्यान से समझो, इफ आई हैव टू सॉल्व बाय द स्लोप, से फॉर एग्जांपल मेथड 2 से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं. मैंने फर्स्ट ले लिया y इज इक्वल टू 3 raised to x minus 1 ln x. तो y dash will become first term into derivative of second term plus second term into derivative of first term. Okay, this is what I have got. Y dash value 3 raised to x minus 1 blah blah blah. सेकेंड, अगर मैंने इसका 1, 0 डाला, देखो 1, 0 यहाँ पे आई सब्स्टिट्यूट. अगर मैंने पॉइंट डाला 1, 0 डाल दिया, से फॉर एग्जांपल एट द पॉइंट 1, 0 डाल दिया, तो y डैश विल बिकम, दिस विल बिकम 3 raised to 1 minus 1 upon 1 प्लस ln 1 into 3 raised to 1 minus 1 ln 3, and y dash will become 1. मेरा स्लोप भी 1 आ रहा है. आई हैव गॉट द स्लोप एज ऑल्सो 1. सेकेंड का स्लोप निकालते हैं. माई सेकेंड इक्वेशन इज y इज इक्वल टू x raised to x minus 1. वी नो x raised to x का डेरिवेटिव इज x raised to x 1 plus ln x. एंड अगर मैंने यहाँ पे 1, 0 डाल दिया, दिस विल बिकम 1 raised to 1 plus ln 1 which is equal to 1. And here also y dash is equal to 1. Therefore, I can say that m1 is equal to m2. Slope of m1 is equal to slope of m2. Therefore, I can say that मेरा जो फर्स्ट का स्लोप है और सेकंड का स्लोप है इक्वल है, और मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1, 0. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 1, 0. पहले का ज्योमेट्रिकल इक्वेशन का स्लोप और सेकंड ज्योमेट्रिकल इक्वेशन का स्लोप सेम है मेरे पास. हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? नाउ
But if the question is this, y is equal to greatest integer function of mod of sin x plus plus mod of cos x greatest integer close and y is equal to x square plus 1. ठीक है, मुझे फाइंड करने का कि टचिंग कौन से पॉइंट पे टच करेंगे नहीं करेंगे, विल दे टच ईच अदर नॉट टच ईच अदर. लेट्स सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन. ठीक है, कि कर्व्स करेंगे कि नहीं करेंगे टच एक दूसरे को. फॉर दैट आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस. ये तो फिर भी इजी सिंप्लीफिकेशन. फॉर दैट आई हैव टू सिंप्लीफाई दिस. अब मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर भी दिया है और मॉड भी दिया. ठीक है, they have given the greatest integer also and mod also. Now y is equal to greatest integer function of mod sin x plus mod cos x. Okay, can anyone tell me कि ये इसका लोएस्ट वैल्यू क्या रहेगा और इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या रहेगा? 0 to 1. Sure. -1 to 1 sin x plus cos x. Remember this, mod of sin x plus mod of cos x. अगर मैंने देखो नेगेटिव तो रहेगा नहीं, सबसे लोएस्ट वैल्यू लेते हैं. अगर x का वैल्यू 0 डाल दिया तो सबसे छोटा वैल्यू क्या रहेगा? 1. साइन 0 is 0, cos 0 is 1, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 हो गया. हाईएस्ट वैल्यू क्या रहेगा बताओ? चलो टेल मी द हाईएस्ट वैल्यू. 30 लेते हैं. लेट्स टेक 30. हाफ प्लस रूट 3 by 2. 1 plus root 3 by 2. Root 3 is what? 1.7. 1.7 by 2. तो 1.7 by 2 कितना हो जाएगा? 1.7 by 2 कितना आएगा? 0.7. 0.85. तो 1.85 हो जाएगा. बट अगर दोनों को 45 लिया, are you understanding? So this will become, इसका हाईएस्ट वैल्यू रहेगा √2. रिमेंबर दिस. तो इसका बिकॉज अगर तुम लोग को याद रहेगा, यू रिमेंबर a sin x प्लस b cos x क्या रहता है? माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ये क्या रहेगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पे -√2 नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा -√2? बिकॉज मॉड है. मॉड नेगेटिव नहीं रहेगा तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या रहेगा? 0 पे 1 रहेगा. हाईएस्ट तो वही रहेगा, √2 रहेगा. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये ऐसा है √2. अब इसके साथ आ गया इफ आई पुट नाउ. अच्छा तो लिख लेते हैं. ये हो जाएगा मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 1.414 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बट ये किसके अंदर है? ग्रेटेस्ट इंटीजर. तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस mod of cos x less than equal to mod of greatest integer function of 1.4. तो I have understood that ये तो इसका एक ही वैल्यू है. क्या है इसका एक वैल्यू? 1. क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.4 इज 1, ये भी 1 है, तो मेरा बेसिकली y का वैल्यू 1 हो गया. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो फॉर कर्व 1 c1 का वैल्यू आई हैव गॉट इट एज 1. ये मेरा कर्व 1 है. कर्व 1 इज 1. अब मुझे एक बात बताओ, मेरा कर्व 2, ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कर्व 1. कर्व 2 y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब मैंने देखो y इज इक्वल टू 1. आई जस्ट टेल यू द y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. इट्स अ पैराबोला. सो इफ आई ड्रॉ दिस लाइक दिस, यहाँ पे बना देते हैं. पहले मैं करूँगा y इज इक्वल टू 1. गाइस y इज इक्वल टू 1 इज दिस. दिस इज y इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1. नेक्स्ट इज अ पैराबोला. देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1. डिड यू अंडरस्टैंड? विच इज नथिंग बट एक्स माइनस 0 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1. तो मेरा वर्टेक्स क्या है? 0,1. क्या है मेरा? 0,1. दिस इज इफ आई पुट, यहाँ पे भी अगर मैंने 0,1 डाला, अगर मैंने इसका वैल्यू, इफ आई सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू, I know that my geometrical figure for this it's going to be like this. हाँ,
x माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होगा 0,1 vertex. The equation is x minus alpha the whole square is equal to 4 into y minus beta, where alpha and beta will be your vertex when the origin is shifted. The actual formula is x minus 0 the whole square is equal to 4 into y minus 0. Understood? So where it is passing through 0, 0, but it is not passing through 0, 0, it is passing through 0, 1. Did you understand this? तो ये चेक करते हैं, समझो मैंने बोला कि ये 0,1 से पास हो रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, अगर मैंने x का वैल्यू 0 डाल दिया, इफ आई पुट x का वैल्यू 0 माई y का वैल्यू इज 1, इफ आई पुट x का वैल्यू 0 द y का वैल्यू इज 1, तो मुझे पता है दैट माई पॉइंट वेर इट इज इंटरसेक्टिंग और इट इज मीटिंग, इट इज गोइंग टू बी 0,1. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये टच कर रहा है कि नहीं एक दूसरे को? ऑफ कोर्स दे टचिंग ईच अदर. एट विच पॉइंट? कौन से पॉइंट पे टच कर रहे हैं? So are you understanding? You can do by trial and error. 1,1, 0,1, 1,0, 0,0. देखो 0,0 भी satisfy हो सकता है. Let's check for 0,0. अगर मैं 0,0 चेक करूँगा, तो अगर यहाँ पे 0 डाल दिया तो x स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो पाएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो 0,0 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. डिड यू गाइज अंडरस्टैंड दिस? हाँ, 0,1 पे सेटिस्फाई करेगा, तो 0,0 पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. So this is your parabola and this is the line. Have you guys understood this? Anybody has any doubts here? Now what we have to find if they're touching each other or not. हाँ, they'll first tell you कि whether they're touching or no. Find the point of intersection. Where are they meeting? 0,1 पे meet कर रहा है. So I am giving you different ways. See, either you can find the slope, you can see whether they are equal or no. At which point they are equal? They are going to be equal at 1,0. Here also it is differentiated. हाँ, and then I found out कि कौन से point पे equal है. But वो trial and error से मिल गया था मुझे कि I am just checking whether trial and error से बराबर है कि नहीं. Here also I simplified this. I got y is equal to 1. ये तो देख के मालूम पड़ रहा है पैराबोला है, मैंने पैराबोला बना दिया, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट है. डिड यू अंडरस्टैंड बेटा? नाउ हाँ, समझो ऐसे दिया है कि टू कर्व्स, पहला C1 कर्व लेते हैं. इट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर एंड कर्व 2 is xy is equal to k. Cut at right angles. Cut at right angles. Okay, cut at right angles. Then k is equal to question mark. They cut at right angles. Therefore, k is equal to question mark. Right angles मतलब slope of first equation into slope of second equation should be -1. Curve 1 का slope निकालते हैं. So I will find out y1 dash. इसका स्लोप रहेगा. For y1 dash निकालते हैं, तो I will what I'll do is 2x 2y dash. ठीक है, ये निकल गया. So I will get y dash is equal to x upon y. Have you guys understood this? Did you guys understand this? अच्छा, कर्व 2 क्या है? xy is equal to k, y is equal to k by x, y dash is equal to minus k by x square. ठीक है, ये मेरा एक स्लोप आ गया, ये मेरा दूसरा स्लोप आ गया. ओके, अच्छा y स्क्वायर x स्क्वायर सब आ गया. नाउ इफ दे कट एट राइट एंगल्स, ये ना, if they cut at right angles, what will we do now? Since they cut at right angles, what do you understand? K का वैल्यू कैसे मिलेगा मुझे? They are perpendicular to each other. So what am I supposed to do? कि y dash of the first into slope of the second should be -1. Yes. Sure. So पहला का slope है x upon y into minus k by x square is equal to -1. ये निकल गया k, ये निकल गया k. अच्छा, xy का वैल्यू क्या है? Oh my god. So minus k upon xy is equal to -1.
तो आई एम टू गेटिंग माइनस के अपॉन के इज इक्वल टू -1. Therefore -1 is equal to -1. Oh my god, what will we do now? Come on, you have to tell me what will we do. We can, rather than cutting the x, एक मिनट make it y. एक काम करो, इसको ना x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ले लो. चलो और इजी कर We लेते. can make that above x and y. सो x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, इसको 1 ले लो ना, तो क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2y y डैश. तो y डैश क्या हो जाएगा 1/2y बराबर. तो अगर 1/2y हो गया, लेट्स सब्स्टिट्यूट. सो दिस विल बिकम 1/2y इनटू, सेकंड इक्वेशन क्या है, माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1. यस, नाउ व्हाट विल यू डू. 1/2y हो गया एंड X square we can make as y square. Y is 4. आई एम सॉरी, No. हाँ क्या करेंगे 1/2y, अच्छा यहाँ पे माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्या कर सकते हैं, ईजी है, यू गाइज हैव इट. अगर तुम ध्यान से देखते हो यू हैव द वैल्यू. तो व्हाट इज इट दैट वी कैन डू, थिंक. We can make it x into x and then xy as k, then k will get cut and 2x is equal to -1, so x is equal to -1. वेरी गुड, यू विल गेट x का वैल्यू. सो माइनस के अपॉन 2xy into x is equal to -1. Therefore k upon 2, what is xy का वैल्यू, k into x is equal to 1. ये निकला k और ये निकला k. So I've got x is equal to 1/2. Now guys, if x is equal to 1/2, if x is equal to 1/2, what will be y का वैल्यू, 1/4. क्या, Y square. प्लस माइनस 1/√2. सो आई गॉट x एंड आई गॉट y, बट मुझे किसका वैल्यू चाहिए, k का वैल्यू चाहिए. X into y is equal to k. दैट x का कौन सा वैल्यू लेंगे, k y का, दोनों वैल्यू लेते हैं, प्लस माइनस ले लेते हैं. तो क्या आएगा, देयरफॉर x कितना है, हाफ इनटू प्लस माइनस 1/√2 इज इक्वल टू k. तो गाइज व्हाट इज k का वैल्यू, प्लस माइनस 1/2√2. दिस इज योर k का. हैव यू गाइज अंडरस्टूड दिस. कुछ नहीं किया है. सबसे पहले याद रखो, आई हैव गॉट माई एक्स का वैल्यू, आई हैव गॉट माई वाई का वैल्यू एंड आई हैव गॉट के का वैल्यू. आई हैव गॉट माई एक्स का वैल्यू, आई हैव गॉट वाई का वैल्यू एंड आई हैव गॉट के का वैल्यू. हैज एवरीबडी अंडरस्टूड दिस. नाउ अभी हमने नॉर्मल का बहुत सम्स किया था. नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एट 4,1 एंड ज्योमेट्रिकल फिगर देखो क्या है, √x प्लस √y is equal to 3. Find length of subtangent at 4,1 to this geometrical figure. So, if we can go through length of subtangent, if I can tell you length of subtangent, ये देखो, this is length of subtangent, y upon m, this is length of subtangent. So now y upon m, सबसे पहले मुझे स्लोप निकालना है, irrespective of what it is, मुझे स्लोप निकालना है. So see what I am, point भी दिया है. So what I'll do is this will become 1/2√x plus 1/2√y y dash is equal to 0. Therefore 1/2√y y dash is equal to minus 1/2√x. ये निकला 2, ये निकला 2. So I'm getting y dash as root of y by x. I have y का value and I have x का value. So y dash will become root of 1/4 and y dash will become 1/2. I have got y dash का value as 1/2. बराबर ना?
-1/2 माइनस आएगा, अच्छा -1/2, ठीक है, स्लोप आ गया -1/2, बराबर, कुछ रॉन्ग तो नहीं किया ना, √y/√x द पॉइंट इज 4,1, ओके, सो √y - √x, तो y dash इज इक्वल टू -1/2. व्हाट विल बी लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है, व्हाट इज y का वैल्यू एंड व्हाट इज m का वैल्यू, व्हाट इज m, m इज दिस, सो अगर मैंने लिखा लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, फॉर्मूला इज y/m विच इज मॉड ऑफ, देखो y का वैल्यू 1 है, 1 और m का वैल्यू इज -1/2, therefore the answer is 2 and this is your length of subtangent. See this before you forget, देखो वहाँ पे लिखा है tm लेंथ ऑफ सब टेंजेंट विच इज़ y/m एंड हमने क्या किया है, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, माई पॉइंट इज 4,1. हाँ, अगर मेरा पॉइंट 1,4 रहता था, अगर मेरा पॉइंट 1,4 रहता था तो मेरा आंसर एग्जैक्टली इसका रेसिप्रोकल होता था, वो हाफ होता था. सो रिमेंबर दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट. चलो लेंथ ऑफ नॉर्मल भी नहीं किया था, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालते हैं. y इज इक्वल टू a t प्लस साइन टी, पैरामीट्रिक करते हैं, एंड x इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी. सबसे पहले फाइंड लेंथ ऑफ नॉर्मल. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ नॉर्मल. देखो दिस इज लेंथ ऑफ नॉर्मल, y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. सबसे पहले मुझे पता है कि y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर है, सो नथिंग आई एम गोइंग टू डू, सबसे पहले आई एम गोइंग टू फाइंड dy by dx. सो सबसे पहले आई विल फाइंड dy by dt. dy by dt इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस cos t and I'll find dx by dt. We are using parametric form, guys. So then x is equal to a into 1 minus cos t, so x is equal to a dx by dt is equal to a sin t, and now dy by dx we'll find out. dy by dx is equal to a into 1 plus cos t is 2 cos square t by 2 and sin t is nothing but 2 sin t by 2 cos t by 2 a t by 2. ये निकला a, ये निकला ये 2 निकला, 2 निकला, ये निकला, ये निकला, तो I will get cot t by 2. Guys, this is your slope. This is your slope. Y under root of this. ठीक है. Now, length of normal. I'll just write the formula. Length of normal is equal to y under root of 1 plus m square. I have y का value also. I have इसका value also. देखो ये y का value है. So this will become a bracket t plus sin t into under root of 1 plus cot square t by 2. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. So a into t plus sin t into cosec t by 2. A into t plus sin t into cosec t by 2. Have you guys understood this? This is your length of tangent, length of subtangent, length of normal, length of subnormal. ठीक है. Monotonicity. Basically increasing, decreasing. ठीक है. Now, when I talk about unidirectional, मतलब वो ना एक डायरेक्शन में जाएगा. इसका मतलब क्या होता है? या तो पहले
इट इज राइजिंग, या तो सेकेंड इट इज फॉलिंग. ओके, इट इज राइजिंग एंड इट इज फॉलिंग. सो ऐसा है, आई कैन से दैट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, rising is increasing. Rising is increasing. So obviously you are aware of it. This is falling again from left to right. But falling is decreasing. ये तो rising है, ये falling है. तो falling is decreasing. Falling is decreasing. Now, falling is decreasing. अब इसमें ना you understand that यह है increasing और यह है strictly increasing. Increasing and strictly increasing. ठीक है, increasing and strictly increasing. तो basically देखो, I can say that obviously you'll come to know strictly increasing कैसे रहेगा. अब increasing I can say that if I have to give an example, चलो ऐसे लो, ये ऐसा हो रहा है, फिर थोड़ा stagnant हो गया, फिर increase हो रहा है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये नॉन डिक्रीजिंग है. बेसिकली आई विल से दैट dy by dx is greater than equal to 0. okay, but strictly increasing मतलब dy by dx I can say that is greater than 0. तो ऐसे रहेगा, बढ़ता ही रहेगा. ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, dy by dx इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. अच्छा, इंक्रीजिंग इज ऑल्सो नॉन डिक्रीजिंग. याद रखो कि इंक्रीजिंग इज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन डिक्रीजिंग. नॉन डिक्रीजिंग, तो याद रखो ये इंक्रीजिंग इज नॉन डिक्रीजिंग. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस. अगर ओके देखो, to understand ki how increasing decreasing usually works, let's take a point a comma b. If f of x is increasing, upward arrow is increasing in round bracket a comma b, in round bracket a comma b. okay, in round bracket a comma b, if f of x is increasing in round bracket a comma b. okay, say for example ये ऐसे इंक्रीज हो रहा है. समझो ये मेरा पॉइंट ए है एंड दिस इज माय पॉइंट बी. ये मेरा पॉइंट बी है. ओके, ए एंड बी here. नाउ I will take 2 points. Say for example this is my x1 and this is my x2. ये देखो, this is my x1 and this is my x2. So please pay attention, guys. This point, ये जो x1 है, इसका corresponding value will be f of x1, and this is x2. इसका corresponding value will be f of x2. okay, मैंने क्या किया, I have taken 2 points. अब on the x axis I come to know on the x axis that x2 is greater than x1. in the same way even f of x2 is greater than f of x1. I repeat, if f of x2 is greater than x1, वो मैंने फंक्शन में सब्स्टिट्यूट करके अगर मेरा फंक्शन ऑफ x2 is also greater than function of x1, therefore f of x is an increasing function. Therefore f of x is an increasing function. Did you guys understand this? But अगर मैंने लिया है कि f of x is decreasing in a comma b, so I'm going to write a same example. मेरा x axis, my y axis, my x axis and y axis.
ये मैंने से फॉर एग्जांपल ऐसे ले लिया, ठीक है, आई हैव टेकन दिस वैल्यू, इसको चाहिए तो ऐसे ले लो, चलो अपन टच नहीं करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। नाउ मुझे पता है कि a कॉमा बी दिया है, दे हैव गिवन a कॉमा बी, लेट्स टेक एनी रैंडम 2 पॉइंट्स। समझो मैंने ले लिया x1 और ये ले लिया x2, ओके। ये x1 का वैल्यू है एंड इसका करेस्पॉन्डिंग वैल्यू विल बी f ऑफ x1 एंड दिस इज x2, इसका करेस्पॉन्डिंग वैल्यू इज f ऑफ x2। अब देख के मालूम पड़ रहा है, देख के मालूम पड़ रहा है कि भले ही x1 इज ग्रेट, सॉरी x1 is less than x2, okay, x1 is less than x2, but f of x1 is greater than f of x2। उल्टा हो गया कि अगर मैंने x का वैल्यू से ले लिया 10 और x2 का वैल्यू ले लिया 20, तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि 10 is less than 20, but f of 10 is greater than f of 20 if I plot on the y-axis, and hence I come to know that this is a decreasing function in a comma b. The f of x is decreasing in a comma b. Okay, the f of x is decreasing function in a comma b. Okay. Now, two most important remarks. रिमार्क 1, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है सो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इफ इंक्रीजिंग फंक्शन इज अप्लाइड, नो चेंज इन इनइक्वालिटी। रिमेंबर दिस, इंक्रीजिंग फंक्शन में इक्वालिटी चेंज नहीं होगा, बट डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंजेस। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी चेंज होगा। नाउ इंक्रीजिंग and decreasing function by f dash x or dy by dx, ठीक है। For increasing function, we treat dy by dx as greater than equal to 0, but for strictly increasing, what we do is we treat dy by dx is greater than 0. Always the for increasing function it has to be positive for increasing function, ठीक है, for increasing function, और ठीक है, as of now we'll go like this. The same for decreasing. For decreasing function, what we'll do is we'll take dy by dx is less than equal to 0, but अगर strictly decreasing बोला है, so we'll take dy by dx is less than 0, or dy by dx is less than 0, okay. Write down. Next point, you can take it as next remark or next point, ठीक है। तो we'll take this as for increasing function, इसको point 1 या remark 1 ले लो, take this as remark 2, you can take this as remark 3, write down. Monotonic function in a comma b, monotonic function in a comma b, monotonic function in a comma b, okay, monotonic function in a comma b, function either increasing or decreasing, function either increasing or decreasing is said to be monotonic function, is said to be monotonic, function either increasing or decreasing is said to be monotonic function.
नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक. Yes, next point, strictly monotonic in round bracket a comma b. Strictly monotonic in round bracket a comma b. Either, इसका मतलब होता है either strictly increasing or strictly decreasing in a comma b. Either strictly increasing or strictly decreasing in round bracket a comma b. Either strictly increasing or strictly decreasing in round bracket a comma b. Next point, non-monotonic. Increasing and decreasing both. अब इसका दूसरा नाम है NIND. What is NIND? Neither increasing nor decreasing. तो देखो, increasing and decreasing both का मतलब होता है neither increasing nor decreasing. इसका एग्जाम्पल है y is equal to sin x in 0, pi. अब 0 to 90 पे इंक्रीज हो रहा है, 90 to 180 पे डिक्रीज हो रहा है, एंड इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रहा है. देयरफॉर इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0, pi. नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बिटवीन 0, pi. देखो इसका एग्जाम्पल देखो ऐसा है, तो ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ ऐसा है, तो यहाँ तक अगर देखोगे π/2 तक, तो ये इंक्रीजिंग है, इसके बाद डिक्रीजिंग है. सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बोथ को हम लोग बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑल्सो. 0, pi फॉर साइन एक्स, ओनली फॉर साइन एक्स. नो, cos x नहीं रहेगा. cos x will it be from other value. तो इफ यू चेक फ्रॉम π/2 to 3π/2, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है. आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो डिपेंड्स ऑन, मैंने यहाँ पे डोमेन दिया है कि 0 से पाई पे साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल कि वो इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है. इन अदर वर्ड्स इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. नेक्स्ट, लेट्स चेक. ये रिमार्क और पॉइंट बोथ, वॉट एवर यू वांट टू ट्रीट इट एज. मोनोटोनिसिटी at a point x is equal to a. मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट x is equal to a. ठीक है. अब इसमें 3 अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स हैं कि f of a minus h will always be less than f of a will always be less than f of a plus h. इसका मतलब होता है इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a. ठीक है. अगर मैंने एक ग्राफ बनाया, a माइनस एच का वैल्यू a से और a प्लस एच से अगर कम है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैल्यू है. ओके. नाउ f of a minus h is less than f of a less than equal to f of a less than equal to f of h. तो हम लोग बोलेंगे इट इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a. इट इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a. ठीक है. इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a बिकॉज इक्वल टू आ गया, बस और कुछ नहीं. सो इट इज इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a. एंड द थर्ड पॉइंट, अगर इसको रिवर्स कर दिया मैंने, सो ग्रेटर देन f ऑफ a is greater than f of a plus h, it means that it is strictly decreasing at x is equal to a. Therefore, it is strictly decreasing at x. F of a plus h or a plus b? A plus h is everything is h. A plus h, everything is a plus h. Now, अब देखो ये हमने डेरिवेटिव्स में बहुत किया है. व्हेन आई टेल यू दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेशनरी पॉइंट्स. स्टेशनरी पॉइंट्स का सिंपल एग्जांपल, अगर मेरा डेरिवेटिव इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0,
एक्चुअली स्टेशनरी पॉइंट्स का एक्चुअल डेफिनेशन इज व्हेन dy by dx इज वेरी लेस, जितना भी लेस डाल सकते हो। अगर मेरा dy by dx इज वेरी 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 माइन्यूट स्मॉल टू 1 हो गई एकदम, मतलब लोएस्ट की वो इक्वल टू 0 कर देते हैं हम लोग, तो इट कैन बी 0.000000001। बेसिकली वो स्टेशनरी पॉइंट है, मतलब वो मूव भी हो रहा है तो अपने को समझ में नहीं आ रहा है, तो वी ट्रीट इट एज स्टेशनरी पॉइंट where it is equal to 1, where it is equal to, so basically I will take it as dy by dx is equal to 0, dy by dx is equal to 0। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, वॉट एवर यू कैन कॉल इट। क्रिटिकल पॉइंट का अगर मैंने ऐसा ग्राफ बनाया, से फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, सो दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज माई क्रिटिकल पॉइंट। ये है मेरा क्रिटिकल पॉइंट, ये है मेरा क्रिटिकल पॉइंट, ये है मेरा क्रिटिकल पॉइंट, ये है मेरा क्रिटिकल पॉइंट। वो पॉइंट जहाँ पे एग्जैक्टली वो पॉइंट पे ना 0 होके इंक्रीज या डिक्रीज होगा, वो स्टॉप होता है, यहाँ पे आके ना स्टॉप होके ऊपर जाएगा। वो पॉइंट जो स्टॉप होता है ना, वो वहां पे वो 0 बन जाता है, उसका स्पीड एकदम 0 बन के वो इंक्रीज होता है, या तो नीचे आते 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 एकदम स्लो करके इंक्रीज होगा, या ऊपर जाके जाके ये पॉइंट पे जब 0 होता है और नीचे जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट और स्टेशनरी पॉइंट। सेम, वो 0 हो गया, वो इतना माइन्यूट है, तो हम लोग यहाँ पे लेंगे ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स। आई रिपीट, ऑल स्टेशनरी पॉइंट्स आर क्रिटिकल पॉइंट्स। All stationary points are critical points. 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 ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट at which the function changes its concavity is point of inflection। मतलब basically the best example is where d square y by dx square is equal to 0। कॉन्केविटी का आई कैन ऑल्सो टेल यू इन्फ्लेक्शन की ना, वो अभी कैसा होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में कभी क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव, थर्ड इज पॉजिटिव, तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, वो चेंज होता रहता है। अगर समझो वो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो या तो पॉजिटिव 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 बन रहा है, या तो नेगेटिव 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 जा रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। इन्फ्लेक्शन का पॉइंट मतलब वो चेंज नहीं हो रहा है बेसिकली, द पॉइंट एट विच द फंक्शन चेंजेस इट्स कॉन्टिन्यूटी इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब मुझे पता है कि इट कैन नॉट बी इन वन डायरेक्शन, इट हैज टू गो अप डाउन अप डाउन अप डाउन, दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। साइन चेंज होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है या कांस्टेंट ही हो रहा है, फर्स्ट रेट इज इक्वल टू 0, सेकंड इज इक्वल टू 0, थर्ड इज इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझो, मेरा क्वेश्चन दिया है x रेज टू 10 एट x इज इक्वल टू 0, तो x रेज टू 10 अगर मैंने x का वैल्यू 0 डाल दिया 0 हो जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव 10x रेज टू 9 x इक्वल टू 0 0, 90 x रेज टू 8 0, 720 x रेज टू 7 अगेन 0, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चेंज ही नहीं हो रहा, हर जगह 0 ही बन रहा है। दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। इफ f of x and g of x are two functions such that x1 is greater than x2, f of x1 is greater than f of x2, and g of x1 is less than g of x2,
okay, and f of g of alpha square minus 2 alpha is greater than f of g of 3 alpha minus 4, then alpha belongs to question mark. Then alpha belongs question mark. ठीक है, अब सुनो ध्यान से. सबसे पहला क्या दिया देखो, they have given x1 is greater than x2. ठीक है, x1 is greater than x2. उस हिसाब से I have got two information. If I write that f of x1 is greater than f of x2, इसका मतलब है ये है increasing function. But if they have given कि g of x1 is less than g of x2, this is called as decreasing function. In other words, अब मेरे लिए क्या दिया है, ये डेटा इंपॉर्टेंट है. ये देखो, f of g of, ये दिया है अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इज ग्रेटर देन f of g of 3 अल्फा माइनस 4. ओके, दिस इज गिवन. अब सुनो, f इंक्रीजिंग फंक्शन है. अगर f इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बेसिकली since f of increasing function, this is also going to be increasing, therefore this is greater than g of 3 alpha minus 4. Since f का function is increasing function, तो x1 is greater than x2, so this value will be greater than this value. But g का function increasing है कि decreasing है? g का function is decreasing. मतलब alpha square minus 2 alpha will be less than 3 alpha minus 4. When I told you, if it is decreasing function, sign of inequality changes. ये हमने लिखा है. Now if I simplify this, this will become alpha square minus 5 alpha plus 4 is less than 0. And if I solve this, I will get alpha minus 4, alpha minus 1 less than 0. Therefore 1 less than alpha less than 4. This is the value of alpha. This is the value of alpha. And I know that alpha will lie between 1, 4. Where I know that alpha will lie between 1, 4. Between 1, 4. Remember this. Between 1, 4. Now, a very good sum. If f, which a function from 0 to infinity, okay, belongs to R, and f of x is equal to e raised to x square minus e raised to minus x square upon e raised to x square plus e raised to minus x square. Okay, ये दिया है. I have to find whether the function is increasing or decreasing. I have to find whether the function is increasing or decreasing. I'll tell you a very easy way कि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये जो मेरा फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग. ठीक है, वेरी गुड सम. सबसे पहले आई विल सिंप्लीफाई दिस. इफ आई सिंप्लीफाई दिस, दिस विल बिकम ई एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई एक्स स्क्वायर अपॉन e raised to x square plus 1 upon e raised to x square. And if I simplify this, I will get 2 e raised to x square and upon e raised to x square. अब इसको ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे ना तो उससे कुछ nothing is happening as such. What I will do is I will write this. See, if I simplify, I'll write it. I'll get like this: e raised to x square into e raised to x square minus 1 upon e raised to x square into e raised to x square plus 1. मज़ा नहीं है. I will suggest something कि ना ऐसे करो. Write it like this. And everyone will go by simplifying this. I'll give you an easier way of simplifying. देखो ध्यान से. e raised to x square plus e raised to x square upon e raised to x square plus e raised to x square
-2 e raised to -x square upon e raised to x square plus e raised to -x square. Did you understand what I have done? -1 को I have written +1 -2. इससे एडवांटेज क्या हो गया? My function has become 1 minus 2 e raised to -x square upon e raised to x square plus e raised to -x square, which is f of x. Did you guys understand this? अब 1 तो आ गया. अब मुझे ये देखना है कि ये जो वैल्यू है ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है वो मालूम पड़ेगा, और किसमें? 0 to infinity में. So let's try to solve this question. सबसे पहले. Now, how are we going to start with this? सबसे पहले I am going to check for x square. ठीक है, सबसे पहले. Now tell me one thing, x square 0 to infinity में इंक्रीजिंग रहेगा कि डिक्रीजिंग रहेगा? It will be increasing. In where? 0 to infinity. तो x square का प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, x square का प्रॉब्लम नहीं है. अब सेकेंड, कैन यू गाइज टेल मी e raised to x एक बार से बाय डिफॉल्ट ले रहा है. दिस विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग इन 0 to infinity. तो गाइज अगर मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, बिकॉज देखो इसको ना मैंने अगर सिंप्लीफाई किया, दिस विल बिकम 2 अपॉन e raised to 2x square plus 1. दिस इज द सिंप्लीफिकेशन. इसको और सिंप्लीफाई करके ये मिल गया मेरे को. सो e raised to x हो गया, e raised to x square हो गया. इसके बाद I know that e raised to 2x square is going to be increasing in 0, infinity. देखो एक्सपोनेंशियल है, स्क्वायर है, सब कुछ इंक्रीजिंग है. कैन यू टेल मी इसके बाद विच वैल्यू विल आई चेक? x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, सब हो गया. एक काम करो, चलो x स्क्वायर 2x स्क्वायर. इसके बाद व्हाट विल आई चेक फॉर? +1. सो दिस विल बिकम e raised to 2x square plus 1 will be what? It will be increasing in 0, infinity. Now comes the most important part. What can you tell about this function? 1 upon e raised to 2x square plus 1. This will be decreasing in 0, infinity. Because अगर increasing है वो reciprocal हो गया तो it has become decreasing. Now next, अगर मैंने इसको 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया तो भी क्या बन जाएगा ये? इट विल बी डिक्रीजिंग इन 0, infinity. बट इसका साइन क्या है? माइनस. तो कैन यू टेल मी -2 अपॉन e raised to 2x square plus 1 विल बी व्हाट? माइनस हो गया तो डिक्रीजिंग का क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग इन व्हाट? 0, infinity. एंड सिंस इज बिकम इंक्रीजिंग, अब इंक्रीजिंग को अगर मैंने +1 भी ऐड कर दिया तो 1 minus 2 upon e raised to 2x square plus 1 will be what? Increasing in 0, infinity. So can you guys tell me this function is increasing or decreasing in 0, infinity? It is an increasing function in 0, infinity. I started from the smallest function. x increasing है, x square increasing है, e raised to x increasing है, e raised to x 2x square increasing है, +1 increasing है, reciprocal decreasing, 2 से मल्टीप्लाई करके डिक्रीजिंग, माइनस आ गया तो इंक्रीजिंग वापस, एंड जब ऐड कर दिया 1 तो इट हैज़ बिकम अ इंक्रीजिंग फंक्शन. डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? नाउ नेक्स्ट, f of x is equal to x minus e raised to x plus tan inverse of 2 pi by 7. So it is increasing in x belongs to question mark. तो किस में इंक्रीज हो रहा है ना वो अपने को फाइंड आउट करना. So what I am going to do is I'll find f dash x. 1 minus e raised to x, लास्ट टर्म कांस्टेंट है बिकॉज उसमें x नहीं है तो इट इज गोइंग टू बी 0. So what I am going to do is I'll write 1 minus e raised to x is greater than equal to 0. Strictly नहीं बोला है. So e raised to x minus 1 will be less than equal to 0. ठीक है, will be less than equal to 0. So basically e raised to x will be less than equal to 1.
अब लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब x का वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू 0. x का वैल्यू विल बी लेस देन इक्वल टू 0, मतलब x विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0. सो x का वैल्यू इज गोइंग टू बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0. x का वैल्यू इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0. अब ये इंक्रीजिंग का हो गया, तो हम डिक्रीजिंग का करेंगे. ये इंक्रीजिंग का हो गया तो हम डिक्रीजिंग का करेंगे. तो f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज डिक्रीजिंग इन क्वेश्चन मार्क. सो कुछ नहीं करना है, आई टेक f डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 3, दिस विल बिकम 1 माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब. 1 माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब. अब डिक्रीजिंग फंक्शन बोला है तो 1 माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब विल बी लेस देन इक्वल टू 0. 1 माइनस 8 अपॉन एक्स क्यूब विल बी लेस देन इक्वल टू 0. इन अदर वर्ड्स एक्स क्यूब माइनस 8 विल बी लेस देन इक्वल टू 0. इफ एक्स क्यूब माइनस 8 इज लेस देन इक्वल टू 0, इसको अगर मैंने सॉल्व किया, सबसे पहले मुझे मालूम पड़ रहा है कि मेरा x 0 नहीं होगा. मेरा x 0 नहीं होगा. रिमेंबर दिस, x विल नॉट बी इक्वल टू 0. सो दिस विल बिकम, इसको ऐसे लिख देंगे x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बी कितना है 2 प्लस ए बी विच इज 2x. ओके, and less than equal to 0. I know that x is not equal to 0 guys, denominator. अगर डिनोमीटर 0 नहीं रहेगा तो आई नो दैट पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज अ सिंपल थिंग. लुक एट दिस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आई नो दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे रहेगा? व्हाट इज द आइडिया ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बीइंग पॉजिटिव? a should be greater than 0 and discriminant should be less than 0. डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0 बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. तो मुझे पता है कि आई हैव अ वैल्यू कि जहाँ पे इट वोंट बी इक्वल टू 0. हाउ एम आई गोइंग टू सॉल्व दिस? मेरा आंसर क्या रहेगा इसमें? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4. हाउ विल आई सॉल्व आफ्टर दिस? अगर x माइनस 2 इज लेस देन 0 आ रहा है एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा. सो हाउ एम आई गोइंग टू सॉल्व दिस नाउ? बताओ. अगर मैंने नंबर लाइन लिया, समझो, यहाँ पे ले लिया मैंने माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पे ले लिया प्लस इन्फिनिटी, 0 नहीं है, 2 नहीं है. नाउ इफ आई पुट, से फॉर एग्जांपल, आई जस्ट गिव अ हिंट गाइज, अगर मैंने x का वैल्यू 10 डाला, अगर मैंने x का वैल्यू 10 डाला तो ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव है. अगर मैंने x का वैल्यू -1 डाला, -1, आई एम जस्ट चेकिंग फॉर -1, एकदम सिंपल. अगर मैंने x का वैल्यू -1 डाला, -1, तो भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव है. अगर मैंने x का वैल्यू 1 डाला, अगर मैंने x का वैल्यू 1 डाला तो मेरा आंसर क्या है? नेगेटिव. सो इट मीन्स दैट इट विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम 0 to 2. अब सुनो सुनो सुनो, I know that 0 is not included because अगर 0 included है तो डिनोमीटर 0 बन जाएगा. But I can include 2 also. So it is going to be a decreasing function from 0 to 2. Whenever you get confused ना, मुझे टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट्स मिल गया. जैसे स्टेशनरी पॉइंट्स मिल गया, जस्ट चेक द वैल्यूज. मुझे पता है 0 नहीं होगा, मुझे पता है 2 पे देख के मालूम पड़ रहा है कि x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो देन यू कैन चेक कि 0 से लेस, check any values, you'll come to know. Now check for 3 also. If you check for 3 here, it is going to be positive. 3 minus 2 is 1, और ये तो पॉजिटिव ही रहेगा. प्लस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज गोइंग टू बी नेगेटिव. तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो यहाँ पे 0 से लेकर 2 के बीच में ही वो नेगेटिव रहेगा, तो मालूम पड़ रहा है. बट वी चेक विथ बोथ द मेथड्स. हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस? नाउ now it's a very important question, a very good question. H of x is equal to
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ f of x the whole cube. Then find relation of monotonicity of h of x and f of x. A very important question guys. h of x दिए, सबसे पहले डेरिवेट करो, मोनोटोनिसिटी पूछा है. अगर मैंने इसको डेरिवेट किया, दिस विल बिकम एफ डैश एक्स माइनस ट्वाइस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस थ्राइस एफ ऑफ एक्स द होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स. एंड इफ आई टेक एफ डैश एक्स कॉमन, I will be left with, if I take f dash x common, thrice f of x the whole square minus twice f of x plus 1. ध्यान से देखोगे तो this is a quadratic equation where a is greater than 0 and discriminant is less than 0. Therefore quadratic equation is positive. तो ये तो पॉजिटिव है, बट वी डोंट नो अबाउट एफ डैश एक्स. मतलब इससे द 3 पॉइंटर्स. सबसे पहले अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एच डैश एक्स भी पॉजिटिव होगा. अगर एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है देन एच ऑफ एक्स भी इंक्रीजिंग होगा. एंड सी पार्ट, अगर एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग है देन एच ऑफ एक्स भी डिक्रीजिंग होगा. ओके, so these are the questions that are asked in advance.